ਕਲਾਮ 'ਚ ਸੁਣਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਖੁਦਾ ਦੀ ਬਰਕਤ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਆ ਸਕੇ। Bear with me while I'm just getting it set up. How about you all stand for a second? So जितनी देर तक मैं अपना सिस्टम यहाँ पर सेट कर रहा हूँ, क्यों ना हम सभी खड़े हों चर्च में And just go and say hello to somebody you haven't said hello to for a long time. तो आप स्ट्रेच कर सकते हैं और जिनको आपने हेलो नहीं बोला कई समय तक, तो प्लीज़ आप एक दूसरे के साथ मिलिए और Oh, thank you. And how about doing one more thing? You're all spread out as if you don't know each other. How about you all come to the front a little bit so that you're closer to me? I won't bite you, I promise. सो क्यों ना हम सभी मैं देख रहा हूँ कि सभी अलग अलग दूर दूर बैठे हैं, तो क्यों ना हम एक दो लाइन आगे आएं और इकट्ठे होकर बैठें। और ये मेरा आपके साथ वादा है कि मैं आपको बाइट नहीं करूँगा। Which one? So, चलिए। Well, thank you for joining us this morning. आप सभी के शुक्रगुजार हो कि आपने हमें आज की सुबह ज्वाइन किया है। It's always a privilege to share the Word of God, और ये बहुत सौभाग्यता की बात है कि परमेश्वर का जो वचन है मैं बांट सकता हूँ। and it's always a pleasure to be with you in Abbotsford. और ये बहुत खुशी की बात है जब भी मुझे मौका मिलता है आपके साथ मैं यहाँ पर इकट्ठा होता हूँ। It seems like I haven't been here for a long time, और कई बार ऐसे लगता है कि बहुत समय हो चुका है कि मैं यहाँ पर नहीं आया। but this morning what we're going to do is look at Matthew chapter 6 verses 19 to 34. I would just ask brother to read it for us. एंड वी आर गोइंग जो हम मैथ्यू उसका 6वां अध्याय और 19 नंबर आयत से हम पढ़ेंगे। 34. 19 से 34 तक हम पढ़ेंगे। Matthew chapter 6 verse 19 to 34. So I will read it out. Don't store up treasures here on earth, where moths eat them and rust destroys them, and where thieves break in and steal. Store your treasures in heaven, where moths and rust cannot destroy, and thieves do not break in and steal. Wherever your treasure is, there your desires of your heart will also be. Your eye is the lamp that provides light to your body. When your eye is good, your whole body is filled with light. But when your eye is bad, your whole body is filled with darkness. And if the light you think you have is actually darkness, how deep that darkness is. No one can serve two masters, for you will hate one and love the other. You will be devoted to one and despise the other. You cannot serve both God and money. That is why I tell you not to worry about everyday life, whether you have enough food and drink or enough clothes to wear. Isn't life more than food, your body more than clothing? Look at the birds. They don't plant or harvest or store food in barns, for your heavenly Father feeds them. And aren't you far more value to Him than they are? Can all your worries add a single moment to your life? And why worry about your clothing? Look at the lilies of the field and how they grow. They don't work or make their clothing.
Yet Solomon in all his glory was not dressed as beautifully as they are. And if God cares so wonderfully for wild flowers that are here today and thrown into fire tomorrow, he will certainly care for you. Why do you have so little faith? So don't worry about these things, saying, what will we eat? What will we drink? What will we wear? These things dominate the thoughts of unbelievers, but your heavenly Father already knows all your needs. Seek the kingdom of God above all else and live righteously, and he will give you everything you need. So don't worry about tomorrow, for tomorrow will bring its own worries. Today's trouble is enough for today. Amen. May God bless His word. We thank you for the written word of God. हम परमेश्वर के जो लिखे हुए वचन हैं उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं. We give glory that God has enabled us to have this written word. और हम परमेश्वर के नाम को सारा जलाल देते हैं कि खुदावंद ने हमें इस लायक बनाया है कि हम प्रभु के लिखे हुए वचन को कलाम को पढ़ सकें. Before we go into these particular passages of verses, I just want to recap what we have been perhaps trying to get the message over to you. So इन वाक्यों को जो अभी हमने आयतें पढ़ी हैं इनकी गहराई में जाने से पहले मैं बताना चाहता हूँ That this passage is part of what is known as the Sermon on the Mount. और ये जो आयतें लिखी गई हैं ये वो वचन है जो जो पर्वत के ऊपर भेजा गया था. These are chapters 5, 6 and 7. और ये वाक्य जो वचन जो पर्वत के ऊपर से मिला था वो मत्ती उसके 5, 6 और 7 में लिखा है. Please understand that Jesus, when he's saying these things, did not come to offer a philosophic view or a set of religious ideas. और जब परमेश्वर यीशु मसीह ने ये आयतें और ये वचन बोले अपने लोगों के साथ तो उसने एक तरीके की कोई फिलॉसफी नहीं बांटी या किसी भी तरीके की कोई धार्मिकता का कोई भी फिलॉसफी नहीं उसने बांटा. What he was announcing was the kingdom of God had come, and he was giving basically the constitution of the kingdom of God. और जो परमेश्वर यीशु बता रहे थे वो यही बता रहे थे कि परमेश्वर का राज्य जो है वो आ चुका है और परमेश्वर के राज्य के जो कॉन्स्टिट्यूशन है जो नेम है वो खुदावंद यीशु बता रहे थे. So what he was talking about was a real kingdom with a real king. और जो परमेश्वर यीशु बता रहे हैं वो सत्य का जो राजा है और राजा का जो किंगडम है जो राज्य है उसके बारे में प्रभु यीशु बात करते हैं. And he was inviting all of those who were sitting there to listen to him and to live under his kingdom rule. और परमेश्वर यीशु जिनसे बात कर रहे हैं वो वहाँ पर लोग जुड़े हुए थे जो उसकी बात सुन रहे थे. I want to just recap. In the world that we live today, there are a number of different ways that the world functions. और आप इस बात से वाकिफ हैं कि जिस धरती में जिस दुनिया में हम रह रहे हैं उसमें बहुत से लोगों के संवादन हैं. We know that in today's world there are kingdoms where king's word is absolute law, like Saudi Arabia. और हम जानते हैं कि कई देश हैं इस धरती के ऊपर जहाँ पर जो एक राजा जब कोई नेम देता है तो उसके नेम की अध्याय सब लोग वैसा ही करते हैं. We also have something called republics, governments of the people and by the people. और कई ऐसे भी देश हैं जहाँ पर जो रिपब्लिक है वो जो एक नेम देते हैं जिससे सब फॉलो करते हैं. So the rule is that people govern according to the will of the people. और वहाँ पर नेम ये है कि जो लोग हैं वो वैसा फॉलो करेंगे जैसा लोग खुद उस नेम को आगे लेकर आते हैं. Then we have the third kind. We know we have federations like India where the states unite under a shared constitution. और हम जानते हैं कि कई देश हैं इंडिया के जैसे जहाँ पर अलग स्टेट से जो विधान है वो इकट्ठे होते हैं और अपनी बात को सामने रखते हैं. US is also like that.
और जो यूएसए है वो भी वैसा ही है। But Jesus is introducing something far greater. He is establishing his kingdom, a kingdom not marked by borders or flags, but was present in the hearts of people. और जो परमेश्वर यीशु जिस राज्य की बात कर रहे हैं वो राज्य वो नहीं है जो कीड़े मकोड़े खा सकते हैं, वो वहाँ से कहीं दूर है। In other words, Jesus' kingdom does not have physical boundaries. और परमेश्वर यीशु का जो राज्य है उसकी किसी भी तरीके से एक फिजिकल बाउंड्री नहीं है, Because it dwells in the hearts of people. क्योंकि वो राज्य जो है उसके लोगों के दिलों में है। This kingdom is growing, expanding, and one day will rule the entire world. और ये जो परमेश्वर यीशु का राज्य है ये दिनों दिन बढ़ रहा है और एक दिन ऐसा आएगा कि जब सारी धरती इस राज्य के अंडर होगी। So, in other words, we could say Jesus is revealing his kingdom's manifesto. और अलग शब्दों में जब हम बात करें तो परमेश्वर यीशु बताता है कि जो खुदावंद का राज्य है वो खुद आपकी जिंदगियों के ऊपर बढ़ रहा है। When you look at Matthew chapter 5 verses 1 to 12, we won't read them. You'll see Jesus begins his kingdom manifesto by blessing the poor in the spirit, the meek and the merciful and the pure in heart and the persecuted. और जब हम देखते हैं कि परमेश्वर यीशु ने जब अपना राज्य शुरू किया तो खुदावंद यीशु ने जो गरीब थे उनकी मदद और सहायता की, और जो लोग जिनके साथ दुनिया अच्छे तरीके से व्यवहार नहीं करती थी, जो परसिक्यूट हो रहे थे, उनकी मदद और सहायता की सबसे पहले। Prophet Isaiah said the Messiah would comfort the brokenhearted, and the psalmist writes and says, "The Lord is near to those who have a contrite spirit." और जो नबी यशाया हैं वो भी यही बताते हैं, और जिन वाक्यों में ज़बूर लिखी गई हैं उनमें भी यही बताया गया है कि जो मसीह यीशु है वो दिलों के बहुत करीब है। Jesus is not just saying that he is my kingdom lifts up the people who are lowly. और परमेश्वर यीशु ये नहीं कह रहा कि मेरा राज्य उन लोगों को ऊंचा करता है जो बिल्कुल ही इकल्ले हैं। He's saying actually that my kingdom belongs to all those who hunger for the king himself. और वो कह रहा है मेरा राज्य उनके करीब है, उनके पास है जो दिल से उस राज्य को खोजते हैं। When we read those few verses at the beginning of chapter 5, we know it as the Beatitudes, as a list of not perfect people. और जब हम मत्ती उसका 5 अध्याय जब पढ़ते हैं तो हमें पता है कि वहाँ पर जो लोग हैं वो एकदम परफेक्ट नहीं हैं। They are a list of hungry people. और वहाँ पर बहुत लोगों की लंबी लिस्ट है जो बहुत ही भूखे हैं। Hungry for righteousness. और Hungry. Sorry, go ahead. और वो धार्मिकता के लिए भूखे प्यासे हैं। Hungry for mercy. और वो दया के लिए भूखे हैं। Hungry for purity. और वो शुद्धता के लिए भूखे हैं। Hungry for peace. और शांति के लिए वो भूखे हैं। Hungry for God's presence. और परमेश्वर की हजूरी के लिए वो भूखे और प्यासे हैं। And hungry for his kingdom. और परमेश्वर के राज्य के लिए वो भूखे और प्यासे हैं। He realized that what he's really saying, the kingdom belongs to those who hunger for the king. और इसमें परमेश्वर यीशु की बात को जानिए, परमेश्वर वे ये कह रहा है कि खुदावंत का राज्य उनके पास है जो परमेश्वर को दिल से खोजते हैं। Not because hunger earns salvation, इसलिए नहीं कि जो आपकी भूख है वो आपकी मुक्ति को आपके करीब लेकर आएगी, but hunger opens your heart, my heart and your heart to receive the king and his kingdom. क्योंकि जो भूख है वो हमारे दिलों के दरवाजों को खोलती है ताकि हम उस राजा को अपनाने पाएं। The kingdom is not for the spiritually elite. और जो राज्य है, जो परमेश्वर का राज्य है वो उनके लिए नहीं है जो आत्मिक रीति में एक अलग लेवल के ऊपर है। It is for the spiritually hunger to learn about spiritual principles and things. ये राज्य उनके लिए है जो दिल से भूखे प्यासे हैं कि परमेश्वर के राज्य की वाकलब बातों को जो जान सकें। Just ask somebody, are you spiritually hungry this morning? आप एक दूसरे से पूछिए क्या आज आप आत्मिक दौर से भूखे हैं? Because if you're not hungry, you won't receive that spiritual food that God wants to give to you. क्योंकि अगर आप भूखे नहीं हैं तो आप उस
फूड को, उस खाने को खा नहीं सकते जो परमेश्वर ने आपके लिए रखा है। And you won't understand the manifesto of the king's kingdom. और आप ये कभी नहीं जान सकते कि जो एक राजा है, राजा का राज्य कैसे उत्पन्न होता है। In Matthew chapters 5 verses 13 to 16, Jesus reveals his expectation of those who are in his kingdom. और जब हम इस अध्याय को आगे पढ़ते हैं तो परमेश्वर ने बताया है कि जो लोग हैं, जो उसके राज्य के भूखे और प्यासे हैं, जो उसके राज्य को पाते हैं, वो क्या करते हैं। See, you and I have expectation of God. क्यों आप देख सकते हैं, मैं और आप, हम सभी ने एक ना एक तरीके की कोई एक एक्सपेक्टेशन रखी है। No matter what it may be, maybe you need finance, you need something, or healing, or family issues, or a problem you're facing at work. You're expecting God to do some miracle in your life. आप हमारे जीवनों में किसी न किसी तरीके की कोई भी एक अपेक्षा है कि हम शायद पैसे के लिए, शायद हेल्थ के लिए कोई ना कोई ऐसी एक आशा है जिसके कारण हम परमेश्वर को खोजते हैं। Have you ever thought, what does God expect of me? क्या कभी आपने ये सोचा है कि परमेश्वर हमसे क्या चाहता है? A relationship is always two ways. और जो एक रिश्ता है वो हमेशा दो तरीके से चलता है। So we always telling God, do this for us. हम अगर हमेशा परमेश्वर को यही कहें कि प्रभु तू हमारे लिए ये कर, तू हमारे लिए वो कर। Have you ever asked God, what do you expect of me? I'm in your kingdom now. क्या आपने ये भी कभी परमेश्वर से पूछा है कि प्रभु तुझे क्या चाहिए कि अब मैं तेरे राज्य का एक हिस्सा हूँ? The nation of Israel has an expectation of its citizens. और जो इजरायली एक प्रजा है, इजरायली लोग हैं, उनके जिंदगी में एक अपेक्षा है। Every single person is trained to fight in the military there. और हर एक जन जो वहाँ पर मौजूद है वो एक मिलिट्री ट्रेनिंग से जा चुका है और उन्हें पता है लड़ाई और जंग कैसे जीतते हैं। Because the nation needs that, because it's surrounded by enemies. क्योंकि उस देश को उसकी जरूरत है, क्योंकि इजराइल के इर्द गिर्द उसके दुश्मनों का एक दुश्मन वहाँ पर हैं। So what does the King of Kings expect of his citizens? तो वो क्या ऐसी चीज है जो राजाओं के राजा को आपसे चाहिए? He said, you are the salt of the earth. और परमेश्वर ने कहा है कि तुम इस धरती के नमक हो। You are the light of the world. और तुम इस धरती की रोशनी हो। So he's expecting, he gave this as an example, saying salt and light, you are to be the light of the world. So salt preserves, light reveals. अगर उसने हमें ऐसा बोला है तो ये वो आशा भी रखता है कि हम इस धरती का नमक हों और रोशनी बने। So when you go into the world, और are जब you taking the goodness of the kingdom into the world and preserving the real moral life, or are you taking the world into your life? और जब आप दुनिया में जाते हैं, क्या आप राज्य की अच्छाई की परछाई को वहां पर छोड़ते हैं, या आप उस दुनिया से कुछ ऐसा लेकर आते हैं इस राज्य में? And the light, what does light do? और जो रोशनी का क्या काम है? The light reveals and removes darkness. और जो रोशनी है, रोशनी अंधेरे को प्रकट करती है और अंधकार को दूर करती है। So the kingdom citizens carried the character of the king into the world. और जो परमेश्वर के राज्य के वारिस हैं, तो वो खुदावंद की इस आशीष को अपनी जिंदगियों में कैरी करते हैं। When you go into the world and you carry the light of Christ in you, is the light removing the darkness of the evil one, or are you getting swamped by his light? और आप जो परमेश्वर की रोशनी है, जब आप दुनिया में जाते हैं, क्या आप उस अंधकार को दूर कर रहे हैं और या वो अंधकार आपकी रोशनी को कम कर रहा है? Now, when you go further in Matthew chapter 5, verses 17 to 48, Jesus moves from the inside of how people behave he moves from righteousness from the outside to the inside now. He's talking about what our character, what needs to change in our heart.
और जब हम मत्ती 5 उसकी 17 अध्याय से पढ़ते हैं तो परमेश्वर यीशु जो बाहरी धार्मिकता है उसे छोड़कर जो अंदर है इंसान के उसके बारे में विचार अपने बांटते हैं। He now begins to tell us the things that cause issues. और ये हमें बताना शुरू कर देता है प्रभु के जो जिंदगी में चीजें हैं जो उन प्रॉब्लम्स को लेकर आती हैं। He says anger is the root of murder. और परमेश्वर यीशु कहता है कि जो गुस्सा है वो मृत्यु का कारण है। Lust is adultery in the heart. और जो आखिरला है वो अडल्ट्री है जिसे व्यभिचार कहते हैं। Reconciliation is the urgent need of the hour. और हमारा परमेश्वर के साथ जुड़ जाना हर एक घंटे का वही इंतजार करता है। Reconciliation is not just with God, but reconciliation with all the people around us as well. We are to be the examples because our ministry is the ministry of reconciliation. और जो हमारा सुलह करना ये ही नहीं कि हमने परमेश्वर के साथ सुलह कर ली, हमारा सुलह करने का मतलब ये है कि जो हमारे इर्द गिर्द लोग हैं जिनके साथ हम रहते हैं उनके साथ भी हमारी सुलह हो। Finally, he reveals something really deep, which is unnatural for the world. और उसके बाद आखिर में परमेश्वर यीशु कुछ ऐसा अद्भुत प्रकट करते हैं जो दुनिया की इंसानी सोचों से कहीं परे है। He says you are to extend love to your enemies. और प्रभु यीशु कहता है कि तुम्हें अपने प्रेम को अपने एनिमीज के साथ बांटना है। Not only love, you are to pray for them. सिर्फ आपको उनके साथ प्रेम ही नहीं करना पर उनके लिए दुआ भी करनी है। Only this king expects that to happen. और सिर्फ एक राजा, सच्चा राजा ही ये हमारे से एक उम्मीद रख सकता है। So what he's saying, Jesus, my kingdom is not about outward performance, but it is inward transformation of the heart. जो परमेश्वर यीशु कह रहे हैं कि जो राज्य का हमें बदलाव देना है उसका मतलब हमें बाहर से बदलना ही नहीं है बल्कि हमें अंदर से बदल देना। The Sermon on the Mount is the ideal ethic of the kingdom. और जो पर्वत से नेम आया है वो सबसे अनमोल है। It is life we strive for, even while recognizing we will fall short of the standard that he's setting for his citizens. और ये वो जिंदगी है जो हम हमेशा सोचते हैं कि हमें पानी चाहिए, फिर भी कई बार हम गिरते भी होंगे, पर ये परमेश्वर का हमारे लिए एक नेम है कि हमें इसके ऊपर चलना चाहिए। So the kingdom is here, जो परमेश्वर का राज्य है वो यहाँ पर है, but it is not fully realized as yet. और वो सभी दुनिया को अभी पता नहीं लगा। So we know the kingdom, but the world outside doesn't understand this kingdom. हमें जो मसीह में है उन्हें पता है कि राज्य क्या है, पर जो मसीह में नहीं है उन्हें अभी नहीं पता कि परमेश्वर का राज्य क्या है। So the ethic is already in our calling, but it is not yet in our perfection. We have not become perfect. और जो ये विचार हैं ये हमारे जहन में तो जरूर हैं पर ये दुनिया के सामने प्रॉपर रिवील नहीं हुए। Our ethic is our calling because we belong to the king now. So जो एक नेत्रिक है वो जो एक राजा है उसकी ओर से बुलाव है। Jesus expects us to live this way today, loving enemies, forgiving freely, walking in purity, humility and mercy and righteousness. और परमेश्वर यीशु हमें यही बताता है कि हम अपने विरोधियों के साथ प्रेम करें, हम हलीमी में चलने पाएं और प्रभु के प्रेम को बांटें। We are in the process of having our hearts transformed. और हम इस प्रोसेस में हैं जब हमारा जो दिल है वो बदल रहा है। We have not arrived at perfection, but we are still being transformed. हमारा दिल जो है वो अभी परफेक्ट तरीके से बदल नहीं चुका पर उस प्रोसेस में है। We live in a fallen world, we battle the flesh, we grow gradually, we stumble, we repent, rise and continue. और हम इस घिरी हुई धरती के ऊपर रहते हैं जहाँ पर बार-बार हम गिरते भी हैं पर फिर हम उठना सीखते हैं। The Spirit is shaping us day by day into the image of Jesus. और जो परमेश्वर का आत्मा है वो हर रोज हमें परमेश्वर की इमेज में ट्रांसफॉर्म कर रहा है। When the king returns one day, और जब वो राजा एक दिन आएगा,
The ethic will not be our calling, it will be our nature at that time. और वो नैतिक हमारी एक कॉलिंग नहीं है, पर वो हमारी जिंदगी का, हमारे स्वभाव का एक हिस्सा होगा When Jesus returns, जब परमेश्वर यीशु आएगा। no one can uproot anger, lust, pride, fear, or unforgiveness by just sheer willpower. और कोई भी इस गुस्से को, गिले को हमारे जहन से दूर नहीं कर सकता। No one loves their enemies naturally. और नेचुरली अगर हम देखें तो कोई भी अपने विरोधी के साथ प्रेम नहीं करेगा। No one can live the Sermon on the Mount alone on their own. और अगर हम देखें तो कोई भी इंसान अकेला जो ये वचन पर्वत से मिला है उसे अकेला जी नहीं सकता। Understand that Jesus promised a comforter, spirit of truth, to abide in us forever. और ये बात को जरूर जानिए कि परमेश्वर ने हमारे लिए एक मददगार रखा है जो हमें कंफर्ट देता है, जो आत्मिक रीति से हमारी मदद और सहायता करता है। This spirit teaches, guides, convicts, and strengthens and empowers. और जो ये आत्मा है वो हमारी मदद करता है, हमें सिखाता है, हमें कन्विक्ट करता है। जब हम गलती करते हैं तो हमें बताता है कि हमें ऐसा नहीं करना He चाहिए। makes it possible for us to live the life that Jesus is setting the standard for. और ये आत्मा हमें इस लायक बनाता है ताकि हम वो जिंदगी को जी सकें जो परमेश्वर यीशु ने हमारे लिए रखी है। I want you to realize some fundamental truth today. और आज मैं आपको एक गहरा सत्य बताना चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ कि आप इसे जानें। Paul says, और संत पौलुस ने कहा, know you not that your body is the temple of the Holy Ghost. क्या आप नहीं जानते कि आपका जो शरीर है वो पवित्र आत्मा का मंदिर है? If you and I understood this verse, it would change everything and every way we do things. अगर हम इस वचन को जान पाएं तो हम जो चीजें जैसे करते हैं वो completely बदल जाएंगी। This is one of the greatest honors Jesus has given us. और ये सबसे ऊंचा एक मूल है जो परमेश्वर यीशु ने हमें दिया है We are the living temple of the Holy Spirit. कि हम जिंदा मंदिर हैं पवित्र आत्मा के। He does not live in a building, he does not live in a structure, he is not in a distant holy place. और जो पवित्र आत्मा है वो किसी बिल्डिंग में नहीं है, किसी पवित्र धार्मिक स्थान में नहीं है, कहीं दूर नहीं है। You and I, your life and your heart is where he lives. आप और मैं, आपकी जिंदगी, आपका दिल वो जगह है जहां पर पवित्र आत्मा रहता है। So realize when we pray, we are not praying to some distant God who is just sitting in the heaven. और जब ये बात को जरूर आप अपने वाक्य में लेकर आएं कि जब आप दुआ करते हैं तो आप किसी दूर के खुदा के नहीं दुआ कर रहे हैं, आप उस परमेश्वर से दुआ करते हैं जो आपके साथ है। I sometimes think when people are praying, they think God is sitting in heaven and looking down and saying, "Ah, not you again." और मुझे ऐसा लगता है कि कई लोग जब दुआ करते हैं तो वो ऐसा शायद उनके वाक्य में आता है कि वो परमेश्वर कहीं दूर है, स्वर्ग में बैठा है और वो नीचे धरती के ऊपर इनकी जिंदगियों को देख रहा है और वो कहता है कि अब ये नहीं। You know, when we pray, we are not praying just to the God in heaven. क्या आपको पता है जब हम दुआ करते हैं हम सिर्फ उस परमेश्वर से जो स्वर्ग में रहता है उसी से ही दुआ नहीं करते हैं। We are praying from a relationship, from a union, from an indwelling presence of the Holy Spirit. और हम उस एकता के साथ, उस एक पवित्र आत्मा के साथ दुआ करते हैं जो हमारे अंदर बसा हुआ है। The Spirit of God does not visit us once in a while. और परमेश्वर का जो रूह है वो कभी एक बार शायद कभी एक बार हमें मिलने नहीं आता। It's not okay, sometimes I feel His presence. और वो ऐसा नहीं है कि कभी कभी हमें उसकी जो हुजूरी है वो महसूस होती है। The Word of God and Jesus' Word says He dwells in us. और परमेश्वर का वचन ये ही कहता है, मसीह यीशु ने यही कहा कि जो परमेश्वर का रूह है वो हम में रहता है। So if He's living in us, अगर वो हम में रहता है, wherever we go, तो जहां भी हम जाते हैं where is He? वो कहां पर है? So wherever we go, the Holy Spirit is with us. So जहां भी हम जाते हैं अगर वो हमारे अंदर रहता है तो इसका मतलब है वो हमारे साथ वहां पर जाता है। Your friend might not walk with you.
आपका दोस्त शायद हर समय आपके साथ नहीं चलेगा, but the Holy Spirit is in you 24 hours a day, every day of the year, forever once He's moved and to take His place. और पर पवित्र आत्मा हर समय दिन के 24 घंटे आपके साथ है और तब तक साथ है जब तक दूसरा आगमन का समय है। How about you just close your eyes? क्यों ना हम अपनी आंखों को बंद करें Say, Holy Spirit, कि पवित्र आत्मा reveal yourself in a deeper way to me this morning. आज अपने आप को गहराई से मेरी सोचों से मेरी समझों से खुदावन समझाएं। Can you feel that warmness in your heart? क्या आप उसकी गर्माहट को अपने जहन में महसूस करते Can हैं? you feel His presence? क्या आपकी उस हुजूरी को महसूस कर रहे हैं? If you truly grasp this truth, क्या अगर आप अच्छे तरीके से सत्य को पकड़ लें, perhaps we would then stop running to prophets or men of God as if they have access to God and we don't. और फिर हम छोड़ देंगे भागना उन नबियों से, उन प्रॉफिट से, उन पादरियों से कि शायद उन्हीं के पास ही परमेश्वर है। Realize you have someone far greater than any man ever could give you because you have the living God's Spirit in you. और ये बात अपने जहन में उतार लीजिए कि आपके पास कुछ ऐसा इतना महान है जो इंसान कभी आपको दे नहीं सकता। Let us honor their ministry, the men of God, but we must never forget we have direct access to God. We have direct connection with Him. We have the Spirit of the living God dwelling in us. हमें अपने पादरियों की, उन खुदा के खादमों की इज्जत जरूर करनी चाहिए, पर यह बात कभी भूलनी नहीं चाहिए कि जो परमेश्वर का रूह है वो हमारे साथ साथ है। What a privilege, what an honor, what a gift God has given us. और कितनी महत्वपूर्ण ये बात है कि कितना प्रभु ने हमारी जिंदगी में ये ग्लोरियस काम किया है जो जिसे हमें पता है। Grasp that summary. The Holy Spirit is with you and He's your companion, He is your comforter, He is your counselor. You don't need to run to anyone. You just need to sit in the presence and say, Holy Spirit, the one who's dwelling in my heart, please, I need help. और इस सत्य को जान लें, इसे पकड़ लें, अपने जहनों में इसे उतार लें कि हमें किसी इंसान की ज़रूरत नहीं है, पर वो पवित्र आत्मा जो 24 घंटे हमारे साथ है, उसके आगे हम ये बोलें कि पवित्र आत्मा हमारी मदद करे, हमारी सहायता करे, हमारी सोचों को सीधा करे। Of course, we all need help. Sometimes we run into problems. ये बात सच्ची है कि हम सभी को मदद की कभी ना कभी ज़रूरत पड़ती है क्योंकि हम सभी मुश्किलों में पड़ते हैं। We need each other, but the one we all need is one that dwells in each one of us hearts if you know Jesus Christ. और हमें एक दूसरे की ये तो ज़रूरत ज़रूर है, पर हमें उन सभी ज़रूरतों से ज़्यादा एक ज़रूरत है जो परमेश्वर का पवित्र आत्मा जो रूह हमारे अंदर वास करता है। Now let's turn to today's scripture, Matthew 6:19 to 21. आए हम आज के वचन में जाएं अब, जो मत्ती उसका 6 अध्याय और 19 नंबर आयत में से शुरू है। Jesus is now continuing to give some basic foundation things that He's expecting his citizens to follow. और परमेश्वर यीशु अब उन विधान की बातों की बात कर रहे हैं जो बहुत ही साधारण है, जिन्हें वो परमेश्वर चाहता है कि जो खुदावंद के राज्य के वारिस है, सिटीजन्स हैं, वो इन बातों के ऊपर जरूर चलें। He says, lay not treasures on earth, lay up treasures in heaven. और प्रभु यीशु कहता है, अपने लिए पृथ्वी पर धन इकट्ठा ना करो। What do we do? पर हम क्या करते हैं? Because we are human beings. क्योंकि हम इंसान हैं। We are in a competition many times. If someone has one car, we want 2 cars. पर हम किसी न किसी तरीके से कंपटीशन में हैं किसी से, अगर उसके पास एक गाड़ी है तो मेरे पास 2 होनी चाहिए। If we have one house and it's small, we see our friend has got house with 6 bedrooms, we want one with 10 bedrooms. So अगर हमारे पास एक छोटा सा घर है, पर हम देखते हैं कि हमारे दोस्त और मित्र के पास 6 बेडरूम का अच्छा घर है, तो हम चाहते हैं कि हमारे पास अब 10 बेडरूम का घर होना चाहिए। Because we associate
possessions of this world with being importance. क्योंकि हम ये सोचते हैं जो इस धरती की चीजें हैं वो शायद हमारी जिंदगी के लिए महत्वपूर्ण ज्यादा हैं. When we see others doing better, what we consider they're doing better in the position of the world with their possessions, we desire to have what they have. और जब हम देखते हैं कि लोग इस धरती में अच्छा कर रहे हैं, जो उनके पास चीजें हैं, जो धन दौलत हैं, जब उनका वो धन दौलत बढ़ता है, उनके एसेट्स बढ़ते हैं, तो हमें ऐसा लगता है कि शायद वो ही एक तरीके की बरकत है. At one time we had a house. We started off with in England with a small bedroom that would probably fit in the size of a single place here. You know, most of 8,000 square foot, but that thing is probably no more than 1,500 square foot. और हमें पता था कि एक समय की बात है जब हम इंग्लैंड में थे तो एक छोटा सा हमारे पास जगह थी जो शायद आज इन बड़े बड़े घरों की एक कमरे में आप फिट कर सकते हैं, उतनी सी हमारे पास पूरे घर की जगह थी. We ended up in Canada having a house that was at a 8,000 plus square foot lot and at least 5,000 square foot of space. और जब हम कनाडा में आए तो हमें ऐसे घर से प्रभु ने ब्लेस किया जिसकी ज़मीन 8,000 स्क्वायर फीट से ज़्यादा थी और लिविंग स्पेस 5,000 स्क्वायर फीट से ज़्यादा थी. It had 4 large bedrooms and 2 rooms in the basement. और हमारे पास 4 बड़े कमरे थे और 2 बेसमेंट स्वीट थे. There came a moment when my wife said, I can't manage this house anymore. और वहाँ पर एक समय आया जब मेरी पत्नी ने मुझे कहा कि इतना बड़ा घर है अब मुझसे संभाल नहीं हो रहा. And then we thought, what do we do with it? All the kids are leaving, everybody, we were just basically most of the time 2 of us in this huge house. और फिर हम सोच रहे थे तो अब हम क्या करें क्योंकि हमारे बच्चे जो हैं वो बड़े हो गए हैं, वो अपनी दिशाओं में जा रहे हैं और हम दोनों उस बड़े घर में रह रहे हैं. On the one side there is the human prestige we saw. और वहाँ पर एक विद्यान पर हमने देखा कि जो एक इंसानी रुतबा है. What will people think if we sell this house? और पर लोग क्या सोचेंगे अगर हमने ये घर बेच दिया? They must have had some problems, financial problems. So if they move to a smaller place, that means, we have now, having such a big place and a big lot, now we've come down in status. तो लोग सोचेंगे कि शायद इनके पास पैसे से कोई तंगी है जिसके लिए इन्होंने इतना बड़ा घर बेच दिया और अब ये छोटे से 1 या 2 कमरे के कॉन्डो में रह रहे हैं. So we came from a 8,000 square foot lot to 4,000 square foot lot. So हमने 8,000 स्क्वायर फीट लॉट को छोड़ दिया और अब हमने 4,000 स्क्वायर फीट लॉट का घर ले लिया. It didn't matter to us. पर वो हमें इस बात का कोई हमारे लिए मोल नहीं था. Because we got a beautiful view, we have a park in front and a nice small house just for us. और हमारे लिए एक बहुत ही सुंदर पार्क हमारे घर के सामने था और जितना हमारा घर था हमारे लिए वो बहुत था. But it's that feeling. I'm sure many must think, इन्हों ने वो घर बेच दिता, हुन छोटे घर च आ गया. पर फिर भी वो फीलिंग ऐसी होती है and that sometimes people think that they left a bigger house and they now have jumped down into a very small place. But let me tell you, those things have no value whatsoever. और मुझे आपको ये सत्य बताना है कि उन चीजों का कोई मूल नहीं है. After I got sick recently, I realized everything is going to be enjoyed by somebody else. और जब मैं थोड़े समय पहले बीमार हुआ तो एक वाक्य मुझे याद आया कि ये जो सब चीजें बनी हुई हैं ये किसी और के लिए वो एंजॉय करेंगे. I have spent all this energy gathering this stuff together only so that someone else can enjoy it. और मैंने अपनी सारी जिंदगी इसमें निकाल दी इस चीज़ों को इकट्ठा करने में, चीज़ों को बनाने में कि जब कोई और उसे एंजॉय करेगा. But what did Jesus say? पर परमेश्वर यीशु ने क्या कहा? He said, lay your treasure in heaven. परमेश्वर यीशु ने कहा कि अपने धन को, अपनी शोहरत को राज्य में छोड़ दो. What does that mean? How do I lay treasure in heaven? और मैं अपना राज्य जो है, अपनी धन दौलत है, वो राज्य में परमेश्वर के स्वर्ग में कैसे इकट्ठे करूं? What did Jesus mean? और ये प्रभु यीशु का क्या मतलब है ये Some कहने people का? will say that means pray.
लोग सोचते हैं इसका मतलब है दुआ करना। Some people may say, read the Bible more. कई लोग सोचते हैं इसका मतलब है कि और वाक्य को, परमेश्वर के कलाम को पढ़ना। Surely those things will help us. ये सच है कि वो चीजें शायद हमारी मदद करेंगी। You see, when you look at possessions, जब आप इन possessions को, जो चीजें हैं इन्हें जब आप देखते हैं, one of the amazing things happens is that you will focus on those possessions. और एक सबसे बड़ी चीज है कि जिन चीजों के ऊपर आपका कब्जा है, आप हमेशा उन्हीं के ऊपर आंखें लगा के रखेंगे। Because you value those things and you don't want to lose them. क्योंकि आपकी निगाहों में उन चीजों की एक बड़ी वैल्यू है और आप कभी भी उन्हें गंवाना नहीं चाहते हैं। That affects all of the human beings that I know. और हर एक इंसान जिसे मैं जानता हूँ उन्हें ये चीजें तंग करती हैं। So what did Jesus mean? Lay your treasure in heaven. और इसका क्या मतलब है जब मसीह यीशु ने कहा कि अपने धन को परमेश्वर के स्वर्ग में इकट्ठा करो? How do you send treasure to heaven? आप स्वर्ग में अपने धन को कैसे भेज सकते हैं? What is it that God values? और कौन सी ऐसी चीज है जिसे परमेश्वर वैल्यू करता है? Have you ever thought about what does God value? क्या आपने कभी सोचा है कि परमेश्वर किस चीज को महत्वता देता है? What is the currency of value in heaven? और महत्व की वो कौन सी करेंसी है जो परमेश्वर के स्वर्ग में चलती है? How many of you have some dollars? आप में से कितनों के पास डॉलर्स हैं? Most of you would be happy right now if you had US dollars and not Canadian dollars, right? आप में से बहुत जने खुश होंगे अगर आपके पास यूएस डॉलर है इस समय। If you have a dollar, just hold it up. अगर आपके पास डॉलर है तो आप हमें दिखाएं। Anyone have real money these days in their pockets? क्या आपके पास Hold it up. Just पैसे हैं तो आप दिखा सकते हैं हमें। the उसे reason ऊंचा करें। it's becoming very rare for people to have cash money. और ये बहुत कम होता जा रहा है कि लोगों के पास एक्चुअली नोट अब अपनी जेबों में है। When you have that currency, you can go anywhere in Canada and buy something with it to that value. और जब आपके पास वो पैसा है तो आप कनाडा में कहीं भी जा सकते हैं और कुछ भी बाय कर सकते हैं। You work for that currency. आप उस करेंसी के लिए काम भी करते हैं। Now Jesus is saying, lay your treasure up in heaven. और जब परमेश्वर यीशु कह रहा है कि अपने धन को स्वर्ग में इकट्ठा करें, So what is the currency of heaven? और जो स्वर्ग की करेंसी कौन सी है? Have you ever thought that? क्या आपने कभी सोचा है? How do you get brownie points in heaven? और आपके पॉइंट वहां पर कैसे इकट्ठे होंगे स्वर्ग में? Anyone would like to try and answer that question? क्या कोई इस सवाल का जवाब दे सकता है? You've read this, I'm sure you've read this chapter, verse many, many times. But have you thought what is the currency that Jesus is talking about? आपने ये वाक्य बहुत बार पढ़े होंगे, पर आपने कभी इस बात के ऊपर मनन किया है कि वो कौन सी करेंसी है जो स्वर्ग में चलती है? Very good. Okay, you're on the right track. Anyone else? Sorry? Sorry, speak up. Your works and your deed. Okay, but what does that translate into heaven? That's why we never focus on what God wants, because we don't understand what it means to build treasure in heaven. इसीलिए हम इस बात के ऊपर कभी भी ध्यान नहीं देते, क्योंकि हमें इसका मतलब ही नहीं पता कि स्वर्ग में धन कैसे इकट्ठा करें। See, we know how to gather the things of the world together, but we don't generally know how to gather things of heaven, because we've never sat and thought about it. हमें ये तो पता है कि धरती में हम धन और शौहरत कैसे इकट्ठा कर सकते हैं, पर हमने कभी ये नहीं सोचा, क्योंकि हमें ये मौका नहीं मिला, हम शायद बैठे नहीं होंगे ये सोचने के लिए कि स्वर्ग में हम धन कैसे इकट्ठा कर सकते हैं। So we never focus on something because we never ask. Jesus said you don't ask, that's why you don't understand, and that's why you don't receive. हमने कभी इसे जाना नहीं, क्योंकि हमने कभी ये सवाल अपने जहन में नहीं रखा और ये सवाल कभी पूछा नहीं। और मसीह यीशु भी यही कहता है, अगर तुम पूछोगे नहीं तो तुम्हें पता नहीं लगेगा। I could ask so many questions, but I need to finish the rest of it off.
और मेरे पास बहुत सवाल है, मैं आपसे पूछ सकता हूँ, पर मैं चाहता हूँ कि मैं वचन को पूरा करूँ। One of the currencies is souls. How many souls have we enabled to get to heaven? और सब एक तरीके की करेंसी जो स्वर्ग में चलती है वो ये है कि हमने कितनी रूहों को परमेश्वर के सुसमाचार तक पहुंचाया है, How well we have helped our fellow men. और कितने अच्छे तरीके से हमने उन लोगों की मदद की है जिनने हमसे मदद How मांगी, well have we helped the poor, the widow, the orphan. और हमने कैसे जो विधवा है, जो गरीब हैं, जो अनाथ हैं, उनकी कैसे मदद की है। I've seen many people pray like this. और मैंने बहुत देखा है कि लोग जो हैं वो ऐसे दुआ करते हैं, Someone comes to them, कोई उसके पास आता है they said, I'm struggling, और वो कहता है कि मैं किसी दुख भरे समय से जा रहा I हूँ, have no money, मेरे पास पैसा नहीं है I'm struggling to pay my rent, और मैं रेंट नहीं अपना पे कर पा रहा, I am hungry. और मैं भूखा भी हूँ। What do many Christians do? और बहुत जो मसीह हैं वो क्या करते हैं जब ऐसा सवाल आपको मिलता है, I will pray for you, brother. और वो ऐसा कहते हैं कि मेरे भाई मैं तेरे लिए दुआ करूँगा, So they pray, Lord, answer his prayer. और वो कहते हैं कि खुदावंद इसकी दुआओं के उत्तर दें, He has need of food. और इसे ज़रूरत है खाने की, He needs a place to live. और उसे जगह चाहिए रहने के लिए, Lord, help him. और प्रभु इसकी मदद करें। Amen. आमीन। God bless you, brother. खुदावंद आपको बरकत दे भाई। And I'll go off in my nice new car to my nice new home, my home full of food, but I'll just ignore what he needs. और मैं जब दुआ कर कर अपनी नई गाड़ी में अपने नए घर में जाऊंगा जहां पर खाने के लिए भरे पड़े हैं, और मैं उसकी ज़रूरत को ऐसे जवाब दे रहा हूं। One of the most difficult things for me is when I travel in India. और सबसे मुश्किल की बात मेरे लिए हर बार यही होती है जब भी मैं इंडिया जाता हूं। I travel in my car, I walk along, people come and say, can you give us some money? और जब मैं अपनी गाड़ी में वहां पर जाता हूं, जब मैं पैदल चलता हूं, तो हर बार लोग मुझसे आकर पैसे मांगते हैं। I can give him all the money I have and I still won't be able to satisfy everybody. और मैं जितना मेरे पास पैसा है मैं सभी को दे दूंगा, पर फिर भी इतने लोग वहां पर हैं जिन्हें कभी भी जिनकी ज़रूरतें सेटिस्फाई नहीं होंगी। And in some places you don't know whether that person is actually in need or he has become what I call a professional beggar. और कई बार हमें ये भी नहीं पता लगता कि जो इंसान वहाँ पर भीख मांग रहा है, क्या सचमुच वो भीख मांग रहा है, कि क्या वो जैसे मैं बोलता हूँ कई बार कि ये एक प्रोफेशनल बैगर बन चुका है। One of the things that I have kind of come is I'm afraid of being taken advantage of by a professional beggar. और ये बात अब एक मेरे समझ में आ चुकी है, और मैं इस चीज़ से अब डरता हूँ कि शायद कोई जो भीख मांगने वाला है वो मेरा फ़ायदा ना उठा ले। I had an experience in England. और मैंने एक ऐसी चीज़ देखी इंग्लैंड में, I had never come across a Punjabi begging in England. और मैंने कभी भी नहीं देखा एक पंजाबी इंसान को भीख मांगते हुए इंग्लैंड में। But that time I was on a railway station. One man comes up to me. और एक समय मैं रेलवे स्टेशन में था और एक इंसान मेरे पास आया, He came and said, I need help. और उसने मुझसे कहा कि मुझे मदद की ज़रूरत है। And I said, so I just backed off because never had anyone, a Punjabi person, come and ask me for money. और उसी समय मैं पीछे हुआ एकदम कि पहले मैंने कभी भी ऐसा एक्सपीरियंस नहीं किया कि एक पंजाबी जो मांगने वाला है वो इंग्लैंड में मुझसे मांग रहा So था। he gave me a wonderful story. और उसने मुझे एक कहानी बताई I lost my wallet. कि मेरा जो बटुआ है वो मैंने खो दिया है, I have to go to court. I'm helping my sister. और मुझे जो कचहरी जाना है, मैं अपनी बहन की मदद कर रहा हूँ। And I'm thinking, this doesn't feel right. और मैं सोच रहा था ये मुझे सही नहीं लग रहा, But then I decided to give him some money. और मैंने फिर सोचा और मैंने उसे पैसे दिए, And I went on my way, he went his way. और मैं अपने रास्ते वो खुद अपने रास्ते चला गया। About 3 or 4 weeks later, और 3-4 हफ्ते बाद this man came up to me again. और फिर मेरे पास आया, He probably forgot about me. और वो शायद मेरे बारे भूल चुका था, And he gave me the same story. और उसने फिर मुझे सेम कहानी बताई। Well, now I knew it was just total nonsense. और अब मुझे पता चल गया था कि ये बिल्कुल बकवास कर रहा है। So I said to him, why are you doing this? I What? met you a few weeks ago.
and you took some money off me there. और मैंने उसे कहा कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, क्योंकि कुछ हफ्ते पहले मैं तुझे मिला था, तुमने मुझसे पैसे लिए। He suddenly got so angry और वो एकदम बहुत गुस्से में आ गया and he took out a wad of money thick as this out of his pocket and he said, "How much do you need?" और वो इतना गुस्से में आ गया कि उसने अपनी जेब से एक नोट की गत्थी निकाली इतनी मोटी और कहा, तुझे कितने पैसे चाहिए? You see, life experience can turn us off from practicing what Jesus said, generosity to those who are in need, who are poor, widow and orphans. आप देख सकते हैं कि जब हम अपनी ज़िंदगी में ऐसी चीज़ों को एक्सपीरियंस करते हैं तो वो चीज़ें हमें गरीबों की सहायता करने में कई बार वो सवाल वहाँ पर पैदा कर देती है। Moving on, in Matthew chapter 6 verse 22 and 23, he says, "If thy eye be single, thy whole body shall be full of light." सो मत्ती 6 अध्याय और 22 नंबर आयत में लिखा है, शरीर का दिया आँख है। You want to read 22 and 23, Okay. please? शरीर का दिया आँख है, इसलिए यदि तेरी आँख निर्मल हो तो तेरा सारा शरीर भी उजाला होगा, परंतु यदि 22 and 24, 22 and 23. परंतु यदि तेरी आँखें बुरी हो तो तेरा सारा शरीर भी अंधेरा होगा। इस कारण वह उजाला जो तुझ में है यदि अंधकार हो तो वह अंधकार कैसा बड़ा होगा। You know, light is key. Light is key. क्या आप जान सकते हो जो एक रोशनी है वो एक तरीके की एक चाबी है। If this place was in darkness and there was no light, we really couldn't see. सो अगर यहाँ पर ये लाइट ना होती इस कमरे में तो हम बिल्कुल देख नहीं सकते थे। Is Jesus talking about natural light here? क्या परमेश्वर यीशु एक नेचुरल रोशनी की बात कर रहे हैं? He is using that as a metaphor to explain to you that you need to open your spiritual eyes. और परमेश्वर यीशु जो रोशनी है उन्हें एक मेटाफोर के तरीके से यूज कर रहे हैं ताकि हमारी जो आत्मिक आंखें हैं हम खुलें। See, if you don't open your spiritual eyes, you'll never see the spiritual things. अगर हम अपनी आत्मिक आंखों को नहीं खोल पाएंगे तो हम आत्मिक बातों को कभी नहीं देख सकते। So he's really saying, focus on your spiritual health. और परमेश्वर जो यीशु यहाँ पर बात कर रहे हैं कि आप अपने आत्मिक जो हेल्थ है उसके ऊपर ध्यान दें। How well do you see spiritually? आप आत्मिक रीति से कितना देख सकते हैं? See, that is where the Holy Spirit comes in. और इसी जगह पर पवित्र आत्मा आता है। Some people are so sensitive to the Spirit, they are become almost afraid because they see demons everywhere. और कई लोग जो हैं वो आत्मा से इतने सेंसिटिव हो चुके हैं क्योंकि अब उन्हें आत्माओं से डर लगना शुरू हो चुका है, क्योंकि जब भी वो देखते हैं तो उन्हें जो गंदी आत्माएं दिखनी शुरू होती हैं। Then they become so afraid, they say, "Oh, I can't go there. I can't go there." और वो डरना शुरू कर जाते हैं। उस समय वो कहते हैं मैं वहाँ नहीं जा सकता, मैं उस जगह नहीं जा सकता। But what do you have inside you? पर आपके अंदर क्या है? You have the Holy Spirit inside you. आपके अंदर पवित्र आत्मा है। If you listen to Him, He will never allow you to go to a place which will affect you so badly. But you need to hear and see what He's trying to show you. अगर आपके अंदर पवित्र आत्मा है तो पवित्र आत्मा आपको उस जगह पर नहीं जाने देगा जहां पर आपको एक्चुअली गलत इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि आपको तैयार होना पड़ेगा कि आप पवित्र आत्मा को सुन सकें और सुन के उसके पीछे आप चल सकें। Then Jesus moves on in Matthew 6:24. और उसके बाद प्रभु यीशु मत्ती 6 और उसकी 24 नंबर आयत में ऐसा कहते हैं। He says, "No one can serve two masters." और परमेश्वर यीशु ने कहा कि कोई मनुष्य दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता। Anyone had two bosses to report at the same time? क्या किसी के पास यहाँ पर दो स्वामी हैं जिन्हें आप रिपोर्ट देते हैं? I'll ask you afterwards. If you've had two managers, do they always speak the same thing? अगर आपके पास दो मैनेजर हैं क्या वो दोनों सेम बात करते हैं? They will have different emphasis on way of doing things and maybe achieving
even slightly different goals. और अगर आपके पास दो बॉस हैं तो वो दो अलग अलग तरीके से आपके साथ बात करेंगे, शायद उनका गोल एक होगा पर वो दोनों का अंदाज अलग है। So what is Jesus saying? पर यीशु क्या कह रहा है? He expands it later. प्रभु यीशु इसे आगे और बढ़ाता है He says you cannot serve God and mammon. और परमेश्वर यीशु कहते हैं क्योंकि वह एक से बैर और दूसरे से प्रेम रखेगा, वह एक से मिला रहेगा और दूसरे को तुच्छ जानेगा। So we talked about putting treasure in heaven and putting treasure in this earth. और हमने अभी देखा है कि परमेश्वर कह रहा है कि कैसे हम अपना जो धन है उसे स्वर्ग में इकट्ठा कर सकें। You can only focus on one fully with all your heart and soul, either God's things or what are the things of the world. आप अपनी जिंदगी में सिर्फ एक चीज पर अच्छे तरीके से पूरे तरीके से फोकस कर सकते हैं, वो शायद खुदावन की ओर से हो सकता है, चाहे आपकी खुद की जरूरतें। So you can focus on putting everything in heaven, or you can focus putting everything in the world. आप एक चीज के ऊपर फोकस कर सकते हैं, शायद वो होगा सब कुछ परमेश्वर के राज्य में तैयार करना, उसके स्वर्ग में तैयार करना, जहाँ इस धरती के ऊपर तैयार करना। But you cannot focus on both with all your heart. पर अपने पूरे दिल से आप दोनों चीजों के ऊपर फोकस कभी नहीं कर So I सकते। can see the look on some of your faces and saying, well, if I put all my treasure in heaven, how am I going to live in this world? और मैं जब देख रहा हूँ आपके चेहरों के ऊपर तो शायद आपके जहन में ये सवाल है कि अगर मैंने सारी दौलत स्वर्ग में इकट्ठी कर ली तो मैं धरती पर क्या करूँगा? I need to eat, I need food, I need transport, I need money for health, whatever else I may need. और मुझे इस धरती पर रहते हुए पैसे की, अनाज की, ट्रांसपोर्टेशन की, हर एक अलग अलग चीज़ों की ज़रूरत है। But what did Jesus say? पर यीशु ने क्या कहा? Later on or earlier, you'll find Jesus said these words. और परमेश्वर यीशु ने कुछ ऐसा कहा Seek ye first the kingdom of God. कि परमेश्वर के राज्य की पहले खोज करो, Then what's going to happen? और उसके बाद क्या होगा? The things that you desire in this world, it says they will be added, or they will follow you rather than you following those things. और उसके बाद ये होगा कि जो आपके दिल की डिजायर है, जो आपके मन की कामनाएं हैं, वो जो है आपको फॉलो करेंगी, इंस्टेड आप अपने दिल की डिजायर को फॉलो करें। In fact, most of us have it the other way round. We Or- say, God bless me, and then I will focus on your kingdom after I've got a nice, comfortable life. और बहुत से हम में से ऐसा सोचते हैं कि प्रभु सबसे पहले मुझे बरकत दे, फिर मैं तेरे लोगों को बरकत दूंगा। But God says, no, that's not the way it's to be. In His kingdom, you are to focus on the things of the kingdom, and He will make sure that we have those things that we need in this world. और परमेश्वर कहता है कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। परमेश्वर के राज्य में खुदावंत के राज्य की आपको खोज करनी है, और प्रभु कहता है कि बाकी की सारी चीजें तेरे पीछे तुझे मिल जाएंगी। And Jesus then finishes in chapter 6, verse 25 to 34, summarizing those. He says, take no thought for your life. Your heavenly Father knows what you need. और उसके बाद प्रभु यीशु आयत 25 से लेकर 34 आयत तक हम छोटा कर कर आपको बताएंगे। Are you worried about things of the world, or are you worried about how much treasure are you putting in the heaven? क्या आप इस दुनिया की चीज़ों से, उन प्रॉब्लम में लगे हुए हैं कि उनसे आप वरीड हैं, जहाँ आपका मेन फोकस है कि आप कितनी दौलत और धन स्वर्ग में इकट्ठी कर सकते हैं? I'm one of these people that loves cars. और मैं ऐसा इंसान हूँ जिसे गाड़ियाँ अच्छी लगती हैं। I used to be able to strip car engines and put them back together, do all kinds of things just to make them go faster, look nice. So मैं गाड़ियों के ऊपर काम भी करता था, उन्हें निकाल कर उन्हें जोड़ता भी था ताकि उनमें थोड़ी सी ज़्यादा पावर हो, थोड़ी सी वो फास्ट आ सके। So I started off with a Mini, ended up with a nice car, and then went back to having a car, no car, and then ended up someone giving me a car for $2. और मैंने सबसे पहली गाड़ी थी मेरी मिनी कूपर, उसके बाद मैं बहुत एक अच्छी गाड़ी में गया, उसके बाद मैं
आया, मेरे पास कोई गाड़ी नहीं थी, फिर मेरे पास एक गाड़ी थी, फिर किसी ने मुझे $2 में भी गाड़ी दी। And that, he wanted to give it to me free, but I refused. I said, no, the Bible says you have to give something back. और वो मुझे फ्री में गाड़ी देना चाहता था, पर मैंने कहा कि जो परमेश्वर का कलाम है यही कहता है कि तुम्हें मुफ्त में कुछ नहीं लेना चाहिए। So I said, tell me how much you want. और मैंने उससे पूछा कि तुम्हें कितना चाहिए। He said, okay, give me a tuning. और उसने कहा कि मुझे $2 दे दीजिए। Right? But I spent more time pushing that thing than actually. और उससे ज़्यादा मैंने उस गाड़ी को धक्का लगाकर घर तक लेकर आया, जिसे मैंने चलाकर घर में लेकर So आना था। I didn't know whether the car was for me or I had to work for the car. और मुझे ये नहीं पता था कि वो गाड़ी मेरे लिए थी या शायद मुझे उस गाड़ी के लिए काम करना था। But what I realized, God could give you what you wanted, and He could also take away what He doesn't want in your life. और मैंने एक बात को जाना कि परमेश्वर जो आपकी दिल की कामनाएं हैं उन्हें आपको दे सकता है, पर अगर परमेश्वर को पता है कि आपको किसी चीज की जरूरत नहीं है, वो आपके लिए अच्छी नहीं है, तो वो आपसे ले भी सकता है। Then later on, और थोड़े समय बाद somebody realized किसी को ये बात मन में आई that I had the most, I was going around that I was struggling buying a car. और किसी को पता लगा कि मैं अलग अलग जगह पर जा रहा था और बहुत मुश्किल में था कि मुझे गाड़ी नहीं उस समय मिल रही थी। God spoke to that person. और प्रभु ने उस इंसान से बात की। He said, give him a brand new car. और परमेश्वर ने उस इंसान से कहा कि इसको ब्रांड न्यू गाड़ी दे दीजिए। I realized that God could undertake for me the things that I could not undertake for myself. और मुझे वहां पर इस बात का रियलाइज हुआ, मेरे मन में आई कि परमेश्वर हमसे वो चीजों को करा सकता है जो हम खुद नहीं कर सकते। I wish I could say I no longer chase after the things of the world, but I am just as human as you are. I am driven both by my nature and also with that spiritual understanding that these things don't matter. But sometimes my human nature takes over. मैं हमेशा यही आस करता हूँ कि शायद मैं ऐसा कह सकता कि मैं दुनिया की चीज़ों के पीछे नहीं हूँ, मैं सिर्फ स्वर्ग की चीज़ों के पीछे हूँ, पर मैं भी आप ही की तरह एक इंसान हूँ। कई बार हमारे जो मन के ख्याल हैं वो हमें किसी और दिशा में ले जाते हैं। To live this life that Jesus is, to live up to Jesus' manifesto of His kingdom requires not, I can't do it in my own strength and neither can you. We need the help of the Holy Spirit. परमेश्वर के राज्य को प्रकट होने में, उसमें काम करने के लिए हमें ये बात को जानना जरूरी है कि हम खुद अपने जोर के ऊपर ये चीजें नहीं कर सकते। हमें परमेश्वर के ऊपर अपना ध्यान रखना है और अपना मन खुदावंद पर लगाना है। The book of Acts declares that the promise of the Holy Spirit is for you and your children. और जो रसूलों की किताब है द बुक ऑफ एक्ट्स, उसमें यही लिखा गया है कि परमेश्वर के जो वादे हैं वो आपके लिए हैं और आपकी पीढ़ी के लिए हैं। You need a new heart and a new spirit. Ezekiel declares that God will give us a new heart and a new spirit. हमें एक नई आत्मा चाहिए, एक नया दिल चाहिए, और इसीलिए एज़ेकियल ने इन शब्दों को कहा कि परमेश्वर हमें नई रूह देगा और नया दिल तैयार करेगा। This King of Kings, the Lord of Lords, is calling you and me. और ये राजाओं का राजा, प्रभु का प्रभु मुझे और आपको बुलावा देता है। He is not only calling us to kingdom expectations or kingdom standards, but to the kingdom empowerment. और वो परमेश्वर हमें जो राज्य की एक एक्सपेक्टेशन है, एक स्टैंडर्ड है, उसी तक ही नहीं बुलाता, वो चाहता है कि हम आगे भी जाएं। If we are trying to live the Christian life in our own strength, अगर हम एक मसीही जिंदगी को अपने जोर से जी रहे हैं, if you are fighting anger, lust, fear, worry or unforgiveness alone, अगर आप गुस्से में हैं, व्यभिचार में हैं, नफरत में हैं, किसी भी ऐसी बीमारी में हैं, if you have felt this weight of the Sermon on the Mount and you realize I can't do that, अगर आपने परमेश्वर के इस वचन का वजन जो उस पर्वत से निकला है आपके जहन में महसूस किया है, I have good news. मेरे पास आपके लिए एक अच्छी बात है। You're in good company as well. आप एक अच्छी कंपनी में हैं।
You were never meant to do it alone. आप कभी भी बनाए नहीं गए कि आप खुद ही अकेले करें। This morning you can come and receive the helper. आज की सुबह आप उस मददगार को पा सकते हैं। Come be filled afresh with the Holy Spirit. आए, तैयार होएं और भरे परमेश्वर के रूह से, उसके आत्मा से और एक नई चाहत से। Come, let the King of Kings empower you to live the life of His kingdom. और आए और तैयार करें अपने आप को ताकि आप उस राजाओं के राजा के किंगडम से, उसके राज्य की एक्सपेक्टेशन से आप निकलें और वहाँ उसमें चलें। Come today and let the Spirit of God write the Sermon on the Mount on your heart. आए आज अपने आप को तैयार करें ताकि परमेश्वर का रूह जो है वो जो ये वचन माउंट जो वो ये वचन पर्वत से निकला है आज आपके दिलों की पट्टियों के ऊपर लिखे। Please stand with me. आए मेरे साथ खड़े हों, Just close your eyes and lift your hand to heaven. अपनी आंखों को बंद करें, अपने हाथों को स्वर्ग की ओर उठाएं। Invite the Holy Spirit to come and take the rightful throne in your heart. आए और पवित्र आत्मा को अगवाही दे के पवित्र आत्मा आए और आपकी जिंदगी में वो स्थान को ले जो प्रभु ने दी है। Tell Him, उसे कहें, you speak and tell Him, आप बोले, खुद बोले और उसे बताएं, I can't live the life that you want me, oh God. मैं वो जिंदगी प्रभु नहीं जी सकता जो तू मुझे जीना चाहता है। I ask you to give me the helper. मैं कहता हूँ कि आप मुझे वो मददगार दें। I ask the Holy Spirit to come into make me a temple of the Holy Spirit. और मैं पवित्र आत्मा को विनती करता हूँ और कहता हूँ पवित्र आत्मा आए और मेरे शरीर को वो मंदिर बनाए जिस मंदिर में पवित्र आत्मा रहता Holy है। Spirit, come and take your place. और पवित्र आत्मा आए अपनी जगह मेरी जिंदगी में ले। I invite you of my own free will. और मैं पवित्र आत्मा आपको अपनी आजादी की इस इच्छा से अपनी जुबान से बुलाता हूँ। In Jesus' name, amen. और प्रभु यीशु के नाम में आमेन। If you have said this prayer अगर आपने ये दुआ को बोला है, and you need help, अगर आपको मदद चाहिए, I'd like you to come out so we can pray with you as the worship team sings. और मैं चाहता हूं कि जब वर्शिप टीम इन गीत को गाएं तो आप अपनी जगहों को छोड़कर आएं, आगे आएं और हम आपके लिए दुआ कर सकें। ਜਿੱਦਾਂ ਪਾਸਟਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅੱਜ ਵਾਕਈ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਨੀਡ ਹੈ, ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਆ ਸਕੋ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਦੁਆ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਖੁਦਾਵੰਦ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ ਔਰ ਆਪਣੇ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਭਲੀ ਵਸਤੂ ਦੀ ਕਮੀ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ। And as our pastor have said, if you have a need in your heart, if you have a need in your life, we ask you to step outside of your place where you're sitting, come forward so we can pray for you, pray for your needs, and the Spirit of the Lord will overtake and fulfill the desires of your heart. ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਬਣਾ ਲਓ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਿੱਧੀ ਲਾਈਨ ਬਣਾ ਲਓ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਫੇਸ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਕਰ ਸਕੋ ਤੇ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਬਣਾ ਲਓ, ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਲੱਗ ਜਾਓ ਤੇ ਆਓ ਆਪਣੇ ਧਿਆਨ ਨੂੰ ਖੁਦਾਵੰਦ ਨੂੰ ਲਗਾਈਏ, ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਵੱਲ ਨਾ ਲਗਾਈਏ ਕਿ ਅੱਜ ਜੋ ਉਹਦਾ ਆਤਮਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੂਹੇਗਾ ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਦੀ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਉਹ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਖੁਦ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕੇ। And come, let us lift our eyes, lift our hearts to the Lord.